तो अभी हम पहुंच चुके हैं काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल के गेट पे। We also have t-shirts and we have the most famous Ghoda Lisa. So this is like Mona Lisa but this is our Ghoda Lisa. इसमें जो है प्योर गोल्ड का वर्क किया गया है। ये जो पालकियाँ हैं ये गोल्ड का वर्क है और इसमें सिंगल हेयर ब्रश जो अपने गिलहरी के बाल का ब्रश जो अब तो बैन हो चुका है, जो पहले जो आर्टिस्ट थे उन्हीं के पास है अभी अवेलेबल, अब नहीं मिलता है, उनसे वर्क किया गया है और एक एक स्ट्रोक प्रिसाइजली और वेरी फाइन तरीके से इसको दिया गया है। मैं अभी काला घोड़ा फेस्टिवल में हूँ और यहाँ पे जितने भी आर्ट्स और डेकोरेशन जो भी ब्लैक हॉर्सेस के लगे हुए हैं सारे किसी न किसी कॉलेज या फिर कोई इंस्पायर्ड आर्टिस्ट हैं जो कि इसको बनाए हैं। उसके पीछे उनका एक यूनिक कॉन्सेप्ट होता है जिस पे ये आधारित है। तो आज हम उनमें से 2-3 जितने भी हमें मिल सकते हैं मैं उनसे मिलूँगा और उनका एक्सप्लेनेशन आप लोग तक लेकर आऊँगा। तो ये जो भी छोटे छोटे फैब्रिक्स जब हम लोग बनाते हैं उसके कट पीस होते हैं तो इनसे ये डिज़ाइन यहाँ पे तैयार है। ये जो हॉर्स बना हुआ है आप देख सकते हो, ये सिंगल यूज जो प्लास्टिक्स होते हैं उनसे बना हुआ है। आप देख सकते हो ये 1000 ऑफ पैरेट क्रिस्टल फ्रॉम पेरू इसको कवर करने में यूज किया गया है, जिसके कारण इसकी जो शाइनिंग है वो सिल्वर कलर की आ रही है। ये हॉर्स और क्रो का एक कॉम्बिनेशन है। ये जो हॉर्स है this art shows the horse always in motion. This is a running horse which depicts like 5 elements of nature: the water, fire, earth, and the space. So you can see the space over in the center. So it's a running horse. So it basically depicts like we as people, we run so much to achieve success and we are always running behind things to slow down in life, and we should be down to earth. So these are the snails which depicts like we should be rooted to ground and we should be down to earth. ये जो हॉर्स आप मेरे पीछे देख रहे हो वाइट विथ मिरर, ये गुजरात से लाया गया है, जिसमें मिट्टी और शीशे से बना हुआ ये घोड़ा है और बहुत ही यूनिक आप देख सकते हो डिज़ाइन। Hello, my name is Kevin. Hi, my name is Smith Nagda. This is our installation. The title is The Chariot of Rampart Row, and we have designed it in such a way that we are celebrating the 25th year of Kala Ghoda. It's the silver jubilee of Kala Ghoda. So the horse is designed all in scrap metal with car scrap metal, and the chariot is designed with wood and all. And the concept, the initial idea was that we need to show the future and the vision of Kala Ghoda. So we have also added a monocular to the Ghoda. So this year's Kala Ghoda theme is Silver Ghoda, as it's the 25th anniversary of Kala Ghoda festival. So silver symbolizes a lot of words. So out of that we chose freedom, power and speed, and each horse represents one of them. So Half and All is basically a poetic exploration of Centaur. That's basically a Greek mythological character. So it typically embodies two entities, that is the human form and the horse. So when we really think about it, it's like the amalgamation of two aspects. It is not just the physical amalgamation or the physical transformation, it also talks about the psychological transformation, that is how the wild meets the intellectual and how the practical meets the impracticality. So even when we were figuring out the materials, we tried to correlate them. So when we spoke about the zipper, we are trying to symbolize it with closure, bonding and binding things together. Then when we come to the measuring tape, it's about how, we have certain boundaries and limitations for ourselves, or how, we limit ourselves to certain things in life. At the same time, it also talks about transformation and creativity when we are talking about the scissor. Then when we come to the patchwork,
that is what truly brings it all together, by seeing all the imperfections, all the perfections, all your aspects, all your memories when brought together truly create something unique that's only meant for you and that's truly your own. There's nothing that could ever change it, and it's creativity in its own part. So that's what we wanted to do with Kala Ghoda as an entity with its theme, and bring ourselves as Sasmira Institute of Design and Textile in its own thing. So creating like an amalgamation of the two. This is what we have. So thank you so much. हेलो एवरीवन, हम यहाँ काला घोड़ा में आज आए हुए हैं. वी आर टीम सिल्वर रिफ्लेक्शन. हम लोग बैंगलोर से आरवी यूनिवर्सिटी कॉलेज से आए हुए हैं, और हमारा आज का थीम, मतलब इस फेस्टिवल का इस ईयर का थीम है सिल्वर रिफ्लेक्शन. क्योंकि सिल्वर इसीलिए बिकॉज इट्स 25th ईयर ऑफ काला घोड़ा. एंड हमारा जो थीम आप देख रहे हो, दे आर लाइक 4 कंपोनेंट्स ऑफ दिस हॉर्स. एंड इसीलिए क्योंकि वो हम ऑप्टिकल इल्यूजन करना चाहते हैं, इसीलिए आपको एक पर्सपेक्टिव से एक प्रॉपर हॉर्स दिखेगा. दैट इज़ आवर थीम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ईयर सिल्वर घोड़ा. हाय, आई एम संग्राम. सो ये इंस्टॉलेशन जो दिख रहे हैं काला घोड़ा में, सो ये एक्चुअली मुंबई का जो ट्रांसपोर्ट है उनको हमने ट्रिब्यूट दिया है उन लोग को. जो गवर्नमेंट ने जो यहाँ का सिस्टम है कंपेयर टू अदर स्टेट, तो वो मेरे को अंदर से थोड़ा बेटर लगा, ज़्यादा बेटर लगा. हाँ, मतलब यहाँ से अगर आपको कहाँ भी जाना है, कौन से एक पॉइंट पे रीच करना है, तो आप इजीली रीच कर सकते हो, और एक कम चीपेस्ट कॉस्ट में. सो जो हॉर्स आप देख रहे हो, वो हॉर्स ये साल का 25th ईयर है काला घोड़ा का, और 25th ईयर पे हॉर्स ही सब इंस्टॉलेशन में दिख रहे हैं. तो हम लोग ने हॉर्स का जब कॉन्सेप्ट निकालने के लिए ट्राई किया था, तब उसमें दिखा कि जो ओल्डर, मतलब पीछे के टाइम पे जब पहले ये होता था ट्रांसपोर्ट्स, तो एक्चुअली वहाँ पे मेन रोल प्ले करते थे हॉर्सेस. और अभी क्या हॉर्सेस अपने कौन है, तो एक तो BST बस है, लोकल ट्रेन है, टैक्सीज है. तो लोग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रैवल करने के लिए वो हॉर्स का यूज़ अभी तो नहीं कर सकते. सो जो भी है, तो हम लोग ने वो कॉन्सेप्ट में डालने के लिए ट्राई किया है ऐसा. हेलो, मेरा नाम धीरज है और मैं टीम कला स्वाध्याय को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे. ये कॉन्सेप्ट और डिज़ाइन हंसोदनी तांबे का है. एक्चुअल में आप इस वर्क का नाम देख सकते तो है अश्वमनु धम्मपद है, जो कि एक स्टोरी से लिया गया है, कन्नाडा स्टोरी, जिसका नाम है वदन. और इसका ओवरऑल आइडिया ये है कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्यूब्स है, और ये एक क्यूब को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास ट्रायंगल्स बनते हैं. इनको अगर हम वेरियस तरीके से हम रखते हैं तो हर बार कुछ नया क्रिएट होता है. सो बेसिक आइडिया इस कल्चर इंस्टॉलेशन का ये है कि क्रिएटिव कॉन्शियसनेस इसके बारे में बताना, जिसमें आप अगर आप अवेयरफुली इनको अरेंज करते हो तो हर बार कुछ नया क्रिएट हो सकता है. और ये सेंसरी है, इसमें आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पता चलता है. और जब हम सेल्फ से जुड़ के मटेरियल के साथ कॉन्शियसली रिएक्ट करते तो कुछ नया क्रिएट होता है. ये बेसिक थिंग है. एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट इसका ये है कि मैं स्पेशली क्रोशे का की चेन्स बनाती हूँ स्मॉल साइज़. तो उसकी वजह से मतलब मुझे खुद को ही चैलेंज करना था कि अगर हम कुछ नेचुरल फाइबर्स में कुछ बनाते हैं तो वो कितना बड़ा बनेगा कि नहीं, क्योंकि जूट ऐसा मीडियम है कि वो हार्ड होता है कंपैरेटिवली टू द वुल. सो वही चैलेंज मैंने किया खुद को, और 1 मंथ में मैंने इसको बनाया. फुल हैंड वीव्ड है, एंड नेचुरल फाइबर्स यूज़ करें जैसे बाम्बू, जूट एंड चिल्ली लाइक क्लोथ्स एंड कॉटन क्लोथ्स. ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है. हमने पहली बार इतना बड़ा बनाया है. ये हमारा पहला प्रोजेक्ट. ओके. हमारे लिए चैलेंजिंग इसको खड़ा करना था, मतलब क्योंकि इतना बड़ा होने के बाद तो स्टफिंग भी होता है अंदर, तो उसको खड़ा करना वो बहुत हैवी है. तो उसको असेंबल करना, फिर असेंबल करके यहाँ लाना बहुत हमारे लिए वो भी बहुत चैलेंजिंग था. बट and this one is the power horse. Basically power, we thought we can represent it using the concept of war. So that's why it has a helmet here and everything, and that's again silver. We can come in the front. And the materials, we have used 3 different materials. That is MDF, here it's paper mache, and inside it's completely hollow. So it's lightweight material also. And that is bottle caps. Hello, my name is Sulekha Prajapati, and I am a student of SNDT PV Polytechnic College from Juhu. And this is our horse, our installation. Our theme was the timeless gallop.
like which give us the message that we slow down and enjoy life. हाय, मेरा नाम आयुष है। तो ये हम लोग के पीछे जो घोड़ा है उसका थीम ऐसा है कि प्रीशियस आज, कल और कल। ये दिखाता है कि मुंबई कैसे ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है। तो ये सब है लाइक जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर ट्रंक्स रखे हुए। ट्रंक्स ये दिखाते हैं कि मुंबई में जो भी आता है अपना सब कुछ छोड़ के आता है, अपना सब कुछ लेके आता है। तो उसके लिए दिखाया गया है कि ट्रंक्स है। उसके बाद वहाँ पे लैपटॉप है। लैपटॉप में दिखाता है कि मुंबई धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो वो है। और उसके बाद यहाँ पे जो ये चेयर है, ये चेयर है यहाँ के जो विंटेज कैफ़े है, ईरानी कैफ़े, उसका वो चेयर है। वो दिखाता है कि वो कैफ़े पहले भी था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो कुशन्स है, वो कुशन दिखाते हैं कि काला घोड़ा फेस्टिवल का जो कंफर्ट है, जो भी यहाँ पे आता है उसको कंफर्ट फील होता है, वो दिखाते हैं। तो और उसके बाद जो उस साइड में जो पिलो है वो फुल्ली हैंडक्राफ्टेड है, और वो पूरा रिबन वेस्ट होता है उससे बनाया गया है। और उसका जो डब्बे है, वहाँ पे जो डब्बे लगाए हुए हैं, तो वो डब्बे ये दिखाते हैं कि जो काला घोड़ा फेस्टिवल है यहाँ पे पहले कॉर्पोरेट हुआ करता था। तो जो भी लोग यहाँ पे आते थे अपना टिफ़िन लेके आते थे, डब्बे वाले आते थे, ये सब दिखाया गया है। और ऑल ओवर इसका यही है कि मुंबई ग्रो कर रहा है। और ये थीम ऐसा है कि ये 25th एनिवर्सरी है काला घोड़ा फेस्टिवल का। तो इसका थीम ऐसा है कि ये आधा घोड़ा काला है और आधा सिल्वर है। Everyone, today we are at the Kala Ghoda merch stall. So this is the official merch stall for the Kala Ghoda Association. So as you can see, everything in this stall is related to Kala Ghoda. So this year Kala Ghoda is celebrating its 25th year. So that's why this year is very special. So from all over the India, different vendors have created specific products for our 25th year. For example, as we can see, this is a tic-tac-toe set, but instead of the crosses and the X's, we have had white and black ghodas playing the game. This is all handmade, handcrafted in ceramic. Excuse me. Yeah, so this is a cube and all its faces have ghodas in it, and it is for 300 rupees. We also have t-shirts, and we have the most famous Ghoda Lisa. So this is like Mona Lisa, but this is our Ghoda Lisa. Please come and buy our Ghoda Lisa. It is being a bang for 2 days and we are literally out of stock. We are going to get new stuff for you guys. We also have very quirky, cute fridge magnets for you. So this is our selfie Ghoda. Come and take selfie with us. Basically a optical illusion or even a perspective illusion. Until you see from a point of view, it doesn't look like a horse, but when you see, you get the silhouette and the shape of the horse. So that's what the whole structure is. We really liked it here and it was very creative. I think the theme this year is horses, not very sure, but it's really creative. Every time when they talk about, I think, eco-friendly things or sustainability, it's a great approach that they show. And yeah, also I love shopping, so got some stuff. Yeah, really enjoyed it. Thank you. जब आप काला घोड़ा विजिट कर लोगे तो यहाँ पे आर्ट प्लाजा गैलरी है, आप यहाँ भी आके विजिट करो। ये इसका कोई वो नहीं है, बट ये हमेशा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे, ये आप देख सकते हो गणपति जी का है, बहुत ही ये सब आप आर्ट किए हो। और तो ये जो गणपति जी बनाए, ये भैया ने बताया, कुछ बताओगे आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में? तो ये पूरा नया ही सीरीज़ है, ये इनफैक्ट कल ही साइन किया है मैंने। दिस वन इज टोटली न्यू। मैंने ऑल ऑफ पेंटिंग्स आर न्यू। सो द कॉन्सेप्ट यही था कि आई वांटेड टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन गणपति एंड एलिफेंट, कि हाउ कैन दे हेल्प ईच अदर आउट वैसे है। सो यू कैन सी लाइक ही इज होल्डिंग द इंक पॉट फॉर हिम बिकॉज ही इज राइटिंग, नो, like you can see he is showing empathy towards the elephant because even he has a broken tusk like the Ganpati. So that was the story behind it. ये फाइनल पिक्चर अभी है। हाउ इट स्टार्टेड वॉज कि एक सिर्फ वर्ड आउट ऑफ नोवेयर आया कि नॉलेज, आई डोंट नो कि हाउ टू रिफ्लेक्ट दैट। फिर वो क्या डॉट टू डॉट बनते गया, फिर वो उसमें फिर मुझे लगा कि शिवा का डाल सकते हैं। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग विद दैट सब्जेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आया। तो वो मूर्ति में है, तो ऊपर से वो उसमें जटा और ये क्या बोलते हैं उसको, रूट्स, वो सेम फॉर्म हो रहे वही शेप में। तो ऐसे थॉट आते आते गया, बट वो है स्टोरी एक वर्ड कहाँ पे था, अभी ये बना है ऐसे। सनलाइट तो मॉर्निंग का मूड है, तो यहाँ से सनलाइट आ रहा है, वहाँ डार्कनेस है, तो वो एक सिंबलिज्म है। ओके। और एक यहाँ सर हैं, इन्होंने 64 के एज में अपने पैशन को परस्यू किया है। उसके बाद मैंने इनका आर्ट देखा, वेरी इंस्पायरिंग। तो सर अभी कुछ बोलेंगे इसके बारे में। I started my art at the age of 64.
after retirement I started it. Initially till 12th I was doing something, then after 40 years I have not done anything. Then again I started, and now what is there you can see. I basically done work in watercolor only. Watercolor is a difficult medium. Initially I do some work in oil paint and acrylic, but I was satisfied with watercolor. Now I wanted to do more and more work in watercolor only. You can see my work behind. तो आप देख सकते हैं ये सर का सारा ड्राइंग्स है, और 64 पेज में ये कॉन्सेप्ट लाना वेरी नाइस, एंड थैंक यू सर फॉर योर टाइम। ये राजस्थान की मिनिएचर पेंटिंग है और इसमें मुगल पेंटिंग भी सम्मिलित है। दोनों जो फॉर्म है ये एक दूसरे से मिली जुली है। ये राजपूत शैली है, ये पेंटिंग है। इसमें एक बाल की नोक से पेंटिंग बनाई जाती है। ये इतना बारीक काम होता है, इस पर प्योर सोने का वर्क किया जाता है। उस समय में राजा महाराजाओं तक ही सीमित थी पेंटिंग, तो ये पेंटिंग उस समय से राजाओं के प्राश्रय में ही आर्टिस्ट काम करते थे, तो उन्हीं तक सीमित थी। अब आज तो आम जीवन में आ गई है ये, लेकिन ये अब अवेलेबल कम है। आर्टिस्ट जो पहले थे राजा महाराजाओं के आश्रय में जो काम करते थे, अब आज उनको कोई आश्रय नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस पेंटिंग को लोग इंडियन पेंटिंग समझ करके थोड़ा समझते हैं कि ये तो अपने घर की है, बाहर वाली अच्छी है, तो अब मॉडर्न आर्ट को उन्होंने अपना लिया है, लेकिन वही अच्छी है। लेकिन ये भी अपनी जगह स्थान खोया नहीं है इसने। अब आपको दुर्लभ लगेगी, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्टों ने काम करना बंद कर दिया और अब करते भी नहीं हैं। अब मैं कर रहा हूँ, मैं 60 साल। डाइंग आर्ट, ये जो आर्ट है, इस तरह का आर्ट जो है अब बिल्कुल डाइंग है। बहुत ही कम कलाकार या आर्टिस्ट ऐसे बचे हैं जो इस तरह का काम को करते हैं। उनमें से कुछ राजस्थान में हैं, मेरे दादाजी जी उनमें से एक हैं। मेरे दादाजी इंटरनेशनल अवार्ड लिए फ्रॉम BBC लंदन इन 1983, और इसी को लेकर हम यहाँ पे आते हैं अपना काम दिखाने के लिए और अपनी मेहनत और पेशेंस को दिखाने के लिए कि एक एक पेंटिंग को पूरा करने में एक एक महीना तक हो जाता है। एक पेंटिंग को बेचने में फिर कितना टाइम लगता है? बेचने के लिए वो जो बायर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको पेंटिंग किस तरीके से, किस व्यू में, वो पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहा है, उसको डिपिक्शन उसको अच्छा लगा या नहीं लगा, सब्जेक्ट अच्छा लगा नहीं लगा, उसके ऊपर बेस्ड है। हाउ मच यू कॉस्ट फॉर दिस पेंटिंग? इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच डिटेल्स वाज डन। लाइक इसमें जो है प्योर गोल्ड का वर्क किया गया है। ये जो पालकियाँ हैं ये गोल्ड का वर्क है, और इसमें सिंगल हेयर ब्रश जो अपने गिलहरी के बाल का ब्रश जो अब तो बैन हो चुका है, जो पहले जो आर्टिस्ट थे उन्हीं के पास हैं अभी अवेलेबल, अब नहीं मिलता है, उनसे वर्क किया गया है। और एक एक स्ट्रोक प्रिसाइसली और वेरी फाइन तरीके से इसको दिया गया है। इसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ है। ओके। तो अभी मैं काला घोड़ा फेस्टिवल में था, और यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि जितने भी आर्ट लगे हुए हैं उनके स्टूडेंट या फिर ऑनर से मिलकर उनका जो कॉन्सेप्ट है और उनका जो आइडिएशंस है आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अगली बार ला सकें। थैंक यू।